Dengue, a mosquito-borne viral disease that claims around 2.5 million people as victims worldwide. If not treated on time, it proves to be fatal, taking lives swiftly and silently. Several regions in India face the threat of dengue. Nearly 34% cases in the world found here annually. Reasons include increased urban population, unplanned sanitation and sewage management, unsafe water storing practices, lack of awareness, social and behavioral mindset. The disease causes more than 20,000 deaths and hundreds and thousands of hospitalization, mainly of young adults and children. Gorakhpur district in the state of Uttar Pradesh is one of the worst hit under the rise and spread of dengue. One of the main reasons for this is its geographical location, within the distribution zone of deadly disease vectors like the Aedes aegypti mosquito that spreads dengue and Zika virus. गोरखपुर में डेंगू पिछले महीनों फैला भी था, जिसके तहत विश ने अपनी टीम के साथ और हमारी फ्रंटलाइन वर्कर के साथ बहुत अच्छा काम किया। बहुत सारे घरों को हम लोगों ने टच किया। सारे हमारे फ्रंटलाइन वर्कर, चाहे वो आशा हों, आंगनबाड़ी हों, एएनएम हों, इनकी अच्छी ट्रेनिंग इनके माध्यम से की गई है, विश के माध्यम से, और हमारे मेडिकल ऑफिसर्स की भी ट्रेनिंग हुई है। बहुत ही अच्छा सपोर्ट स्पेशलिस्ट द्वारा मिला है और उसी का परिणाम रहा कि कोई भी डेंगू डेथ गोरखपुर में नहीं होने पाई, और इसके लिए मैं विश्व को धन्यवाद भी करूँगा। To combat the dengue outbreaks in Gorakhpur, a low-cost dengue prevention strategy focusing on better linkage between demand and supply by leveraging technological advancements was the need of the hour. Based on the National Vector-Borne Disease Control Program, a community-based dengue prevention and control project was initiated by WISH in 2017. These were then addressed through focused interventions under the SUBA, or Strengthening Urban Behavior Around Health project. From a baseline survey among targeted communities, lack of mass awareness and lack of key prevention methods came out as the twin challenges against dengue prevention. To create the greatest possible impact in preventing dengue outbreaks, long-term strategies were created. कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ एजुकेशन पे है। हम लोग कम्युनिटी को अवेयर करने के लिए बहुत सी एक्टिविटी करते हैं, जिसमें हाउस टू हाउस विजिट है, कम्युनिटी मीटिंग्स हैं, स्कूल एक्टिविटीज़ हैं। इसके अलावा हम लोग जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हेल्थ के साथ, ICDS के साथ मिल के एरिया में काम कर रहे हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग है। Technological innovation was one of the master strokes of the project. The community application and the clinical Dengue application were designed and developed for community interventions in early diagnosis, prompt management and treatment of dengue cases. The community application is used by ASHA workers, community health workers and MAS members. It is a unique tool for identifying fever, registration and referrals to the nearest health centers. उनके घर पे जाते हैं और फिर उन्हें हम उस मोबाइल के मतलब जरिए से उस ऐप को हम लोग क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद से हम लोग उनसे पूछने लगते हैं कि आपके घर में मतलब कितने परिवार हैं, इसमें से कोई बीमार, कोई जैसे बुखार वगैरह किसी को तो नहीं है। अब बुखार वगैरह होता है तो मतलब ये सब जोड़ के हम लोग उसमें रख लेते हैं और उसको तुरंत हम लोग अपने बीस फाउंडेशन ऑफिस में या अपने सीएम ऑफिस में भेज देते हैं। और फिर दोबारा फॉलो करना होता है तो उसी के माध्यम से हम लोग फिर उसको फॉलो कर लेते हैं। It enables mapping of all stakeholders, doctors, pharmacy, labs and donors, and also has an IPC tool for prevention, control, IEC and training. हम लोग को काफ़ी दिक्कतें आती थी, जैसे हेल्थ पोस्ट में जब हम काम करते थे कि जांच से रिलेटेड काम वो होता था कि कैसे हम उन चीज़ों को जो पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं किस तरीके से हम उनको टेस्ट करें या किस तरीके से हम उनको ट्रीट करें। तो चूंकि विश फाउंडेशन ने हम लोग को एक टैबलेट भी प्रोवाइड किया हुआ है सभी हेल्थ पोस्ट पे हम लोग के पास भी है, और उस टैबलेट में जब हम किसी जो फीवर पेशेंट आते हैं, जब हम उनको उसमें एंट्री करते हैं तो काफ़ी चीज़ें हम लोग को स्टेप बाय स्टेप उस टैबलेट से भी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि आगे हमें क्या करना है, क्या कैसे हमें टेस्ट करने हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको टेस्ट भी करते हैं और फिर उनको हमें ट्रीट करने में आसानी होती है। The clinical Dengue application is issued to service providers like healthcare centers to report and monitor dengue cases for effective treatment. विश फाउंडेशन की तरफ से बहुत ज़्यादा सहयोग किया जाता है। वो
डेंगू के लिए पूरे एरिया में पूरी कम्युनिटी को अवेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोग्राम चलाती है। Training and capacity building for all partners were organized, including ASHA, AWWs, Anganwadi workers, lab technician, Mahila Arogya Samiti, ward members, members of urban local bodies, sanitary workers and school teachers. Focused interventions like the continuing medical education programs were also arranged for doctors and pharmacists in 4 more districts apart from Gorakhpur. सर, ये सीएमई का फ़ायदा जो विश फाउंडेशन की तरफ से चलाया जा रहा है, इसमें हमें ये जानकारी होती है कि कैसे सर्विलांस करना है, डायग्नोस करना है और लैब टेस्टिंग कैसे करनी है। इसके अलावा जो भी हमारा ये लोग बताते हैं, इसके अपडेटेड प्रोटोकॉल, उसके बारे में हमको जानकारी होती है, जिससे हमको मरीजों को इलाज करने में और आसानी हो जाती है। Government has supported anti-larval and anti-adult measures which were adopted as part of an integrated vector management strategy aiming to protect the ecosystem and curb the growth of the Aedes aegypti mosquito. विश फाउंडेशन हमारे वहाँ जितने सफाई कर्मी हैं, उन सफाई कर्मियों को ग्लव्स देना, मास्क देना, टी शर्ट देना, ये सब काम करते रहते हैं कि ताकि जो कर्मचारी है वो कायदे से अच्छे से काम करे और अच्छे से पब्लिक में लोग का योगदान बना रहे। A behavior change communication strategy was also adopted through media awareness campaigns, school and college interventions, health camps, etc. से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हम लोगों को पड़ा। सबसे पहले तो हमारे घर में पहले ऐसे फ्रिज में पानी रहता था, कूलर में पानी रहते थे, तो उसको हम लोग ऐसे ही बस छोड़ देते थे, टाइम मिलते ही उसको साफ़ करते थे। लेकिन अब जब हम देखते हैं कि ऐसे कहीं टंकी में पानी है, छतों पे पानी भरे हुए हैं, तो सबसे पहले हम लोग उस पानी को साफ़ करते हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग सुबह हैं और हमारे घर में मच्छर हैं, तो हम लोग उसमें ओडोमॉस लगा के अपने आप को प्रिवेंट करते हैं। पूरी बॉडी वाले क्लोथ्स पहनते हैं हम लोग, जिससे हम लोग के क्लोथ ढके रहते हैं, शरीर ढके रहता है। यहाँ साफ़ सुथरा के हम लोग करते हैं, कूड़ा इकट्ठा नहीं होने देते हैं। कूड़ादान वाले आते हैं, लोग बुलाते हैं, हम लोग कूड़ा फेंक देते हैं, वो लोग खुद ले जाते हैं और अपना घर का साफ़ सफाई भी अच्छे ढंग से करते हैं। फ़र्क ये पड़ा है कि हम लोग सेफ्टी हो गए हैं, ठीक, क्योंकि हम लोग बीमारी से बचे हैं, क्योंकि वो लोग हम लोग अच्छे तरीके से समझाए हैं कि ऐसे में तो हम लोग अपने आप को मेंटेन किए हैं। मेरी तबीयत ख़राब थी, 1 महीने से मैं प्राइवेट डॉक्टर को दिखाते दिखाते थक गई, पैसा बहुत लगने लगा। उसके बाद से हमारे गांव की आशा जी स्वास्थ्य केंद्र से आई। आशा जी के साथ मैडम आई थी, विश्व मैडम, उन्होंने बताया, उनके साथ हम आने लगे स्वास्थ्य केंद्र में। हमको बताने लगी कि वहाँ पे दवा आपको पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। हमने आए और सरकारी दवा लेने देंगे, पैसा मतलब अब एकदम नहीं लगता है। बुखार बीपी सब कंट्रोल हो गया है। अब मेरा स्वास्थ्य ठीक रहता है, बच्चे भी ठीक रहते हैं, दवा हमको बहुत फ़ायदा करता है और वहाँ का मतलब सब कुछ अच्छा है। Partnering with the government, the Suba project is bringing life back into the dengue-ridden areas of Gorakhpur. The long-waged war against dengue in Gorakhpur is now bringing results visible to all.